Now let's tell you what was really happening. You have men in uniform, that's the Pakistani army. In fact, part of the police in Balochistan who were basically carrying out this brutal attack. In fact, what you see right now, protesters who are completely unarmed. This is what is happening currently in Quetta. They are completely unarmed. They do not have any weapons, unlike what Pakistan wants the world to believe, that they have sophisticated weapons. But ladies and gentlemen, unarmed people, men, women, children, all being attacked. This kind of hostility that is actually taking place, the oppression of the Pakistani army now caught on camera. Take a look. Now let's take you through the heart-wrenching testimonies. We will be playing all of that in a short while from now. But this, ladies and gentlemen, came to our newsroom from our sources in Balochistan, where you have young men who are pleading for justice. In fact, their loved ones they were being targeted by the Pakistani army. In fact, this image that you see right now on this on your screens, a young boy wailing uncontrollably, and you have family members trying to console him. We are being told that his family members who were inside the civil hospital, and he was not being allowed to enter the hospital. In fact, some of the activists thereafter barged into the hospital. Listen in to what this young Balochi had to say. यार ये तमाशा ना मसाइब रात सुनिया ए बाबा कुछ ना पुरु इधर ना पुरु बाप बिना ने कि तुम्हारा हाथ को बोले करो दिया ना इलाज नहीं दी भी हमारी इलाज नहीं दी भी करो दिया ना यार ये तमाशा ना मसाइब रात सुनिया Ladies and gentlemen, just to put this into perspective, what was this protest all about? 13 innocent Balochis, they were buried by the Pakistani army in various graveyards in Quetta. In fact, it turns out that the Pakistani army did so by labeling them as terrorists. Now, without even informing the family members, they were tortured, killed, and thereafter buried, resulting in a massive uprising in Quetta. What you see right now on your screen are protesters who are completely unarmed, and they were sitting there carrying on with their protest. Now, what you see is that in this particular video, where you are seeing the protesters being removed by the Pakistani army and then brutally assaulting them with sticks. Those are also videos that we are going to put out in a short while from now, as we have been saying that we are here to expose the reality for the world to take notice of what's really happening in Balochistan, and perhaps for how long can the world really ignore the reality in Balochistan. In fact, ladies and gentlemen, tonight we have also got you testimonies of people in Balochistan as to how they are being tortured, how they have been relegated to a corner, and in their own country they have no access to their own resources. Listen in. दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ सुनने वाले अवाम को मुखातिब हूँ। इस वक्त हम क्वेटा में धरने पे बैठे हुए हैं। कल जैसे कि आप सबको मालूम है कि क्वेटा पुलिस ने जिस फस्तानियत का मुजाहरा किया और निहत्ते मुजाहिरीन पर जो फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 मुजाहिरीन शहीद हुए और जो है ना मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनकी अभी तक सर्जरियाँ जारी है। इसके बाद जब हम लाशों को लेकर धरने पे बैठे तो रात 5:30 बजे
वापस धरने पे क्रैक डाउन किया गया और डॉक्टर मारंग समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए, जिनका ताहाल कोई जो है ना हमें मालूम नहीं हो रहा कि कहाँ पर है। और इसके साथ साथ लाशों को भी घसीट के अपने साथ ले गए और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ले गए। हालात को देखे और खुद सवाल उठाए कि इन हालात में बलोच क्या करे, क्या हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा जा रहा है? लाशों को रख के रोड पे एहतजाज करने के अलावा और कौन सा पुरअमन तरीका हो सकता है? हम हर तरीके से पुरअमन होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत बदतरीन जबर का मुजाहिरा कर रही है। तो पुरअमन कारकुनों के साथ एक ही जो जरिया होता है कि वो अपनी आवाज़ को पहुंचा सके, वो आवाम की उनके साथ हमदर्दी होती है। आपकी हमदर्दी हमारी ज़िंदगियों को बचा सकती है। हमारे हाथ में ना बंदूक है, ना हमारे हाथ में डंडे हैं, ना हमारे हाथ में कुछ और है। हम इस वक्त अपने आवाज़ के बलबूते पे एक बड़े जालिम जाबिर रियासत से ये जंग लड़ रहे हैं। अगर आप हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ नहीं मिलाते तो कल 3 लाशें आई थी और मजीद लाशें आती रहेंगी। कासी कब्रिस्तान में दफन 13 लाशों के हमने जब शिनाख्त का मुतालबा किया तो हमारे साथ ये जबर का मुजाहिरा किया जा रहा है। बीबर बलोच को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सईदा बलोच और बाकी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। और जब हम रोड पे उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए तो अंधाधुन फायरिंग करके 3 लोगों को शहीद करके बाकियों को जख्मी कर दिया। और जब हम लाशों को ले आए तो बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मजीद आगे आते जाए और कुर्बानियाँ देते जाए। आप सबकी खामोशी इस जबर को बढ़ावा दे रही है। आप सबका इस रियासत के आगे चुप होना इस जबर को बढ़ावा दे रहा है। मैं तमाम लोगों से, खासकर अपने बलोच कौम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो घरों से निकले, जहाँ मुमकिन है वो सड़कों को बंद करे, जहाँ मुमकिन है वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए। जब लीडरशिप गिरफ्तार हो जाए तो अनारकी फैल जाती है और अनारकी वाली सिचुएशन आ चुकी है बलूचिस्तान में। आप जहाँ भी बैठे हैं अपने वसअत के मुताबिक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और वो जो असम्बलियों में बैठे हैं, मैं यही कहूंगी कि वो गद्दार है, वो दलाल है, वो कौम को बेचने वाले हैं। आज जब कौम के हकीकी रहनुमा सड़कों पे है, कौम के हकीकी रहनुमा गिरफ्तार है, तो आप किस खाते से बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप किसके टिकट पे वहाँ पे पहुंचे हुए? क्या बलोच कौम ने आपको इसलिए वहाँ भेजा था? यही दिन जो है ना जाहिर कर रहा है कि आप किसके लिए वहाँ गए हुए हो। जो शख्स जिस पार्टी में बैठा है और वो बलोच है और वो बलूचिस्तान के खाते पे असेंबली में पहुंचा हुआ है, वो गद्दार है। डिक्लेयर कर ले। कौम आज के दिन को एक जो है ना तारीखी दिन के तौर पे याद रखे कि ये दिन उन सब गद्दारों को मोहर लगा चुका है उन पे कि वो अपने घरों में अपने जो है ना सीट के लिए, अपने पोजीशन के लिए बैठे हुए और इस वक्त कौम जो है ना बदतरीन जबर का सामना कर रही है। कर्फ्यू नुमा जो है ना सिचुएशन यहाँ पे हो चुका है। सड़कें बंद है, नेटवर्क बंद है, पुलिस हर 5 मिनट बाद क्रैकडाउन कर रही है। कल से लेकर अब तक 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं। यही छोटे बच्चे 10 साल के, 15 साल के, 12 साल के, आप सिविल के ट्रॉमा की लिस्ट देख ले जिसमें 10 साल के बच्चे भी शामिल है। जो बच्चा शहीद हुआ है वो 12 साल का है। वो बच्चे उठ के आ रहे हैं। बाकी लोग हमारे कहाँ हैं? हमारे जो है ना गैरतमंद हमारे वज़रा जो मीर, टक्कर, सरदार हो, कबायली रहनुमा और हर दिल अजीज वगैरह वगैरह, ये लोग कहाँ हैं? तमाम सरकारी लोग आज लोग डिक्लेयर कर ले उनको कि ये सरकारी लोग हैं, इनका बलोच से कोई वास्ता नहीं, ना इनकी कोई जबान, ना इनकी कोई आवाज बलोच के लिए कारआमद है। आज जो असेंबलियों से अपनी इस्तीफा नहीं देता वो डिक्लेयर हो जाता है। बलोच कौम से दरख्वास्तें निकले, अपने घरों से निकले, आखिरी सांस तक बैठे रहे। पुरअमन होने की अगर सजा यही है तो हम पुरअमन रहेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज इस इम्तिहान की घड़ी में बलोच आपकी आवाज का मुंतजिर है। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम अब भी बुरमा होटल के सामने धरने पे बैठे हुए हैं और जितने भी लोग हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जहां जहां मुमकिन है वो सड़कों को बंद करें और अपने मुजाहरे का रिकॉर्ड करवाए। शुक्रिया।